Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Lisburgia Preschool online classes. Kids, today's date is 27 September 2020 and day is Sunday. Hey kids, now this is time for English recitation. So kids, today we are going to recite an English rhyme. Let's start. Stand up on your place wherever you are and put your hands on your waist. And today we are going to recite English rhyme. Row, row, row your boat. Let's start. Row, row, row your boat gently down the stream. Repeat after me, kids. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Kids, let's repeat one more time. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is like a dream. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Now practice it well. Thank you. Hey kids, this is your English oral class. And today we are going to learn phonetics K to T. आज हम क्या पढ़ेंगे? Phonetics K to T. In our last class, we have learned phonetic A to J. Let's start, kids. Mr. K. Mr. K क्या साउंड करते हैं kids? Mr. K says ka 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 kite. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. Mr. N says na 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 nest. Mr. O says o o o orange. Mr. O says o o o orange. Let's revise. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. And Mr. O says o o o orange. Now Mr. P says. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. T says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Mr. T says ta 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 tiger. Let's revise one more time. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Yes? Learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to next class and that is English written. Kids, take out English notebook and open the page where I have done the setting on 27 September 2020 and day is Sunday. Kids, अपनी लास्ट क्लास में हमने A से लेके L तक में बहुत सारे फॉर्मेशन रिवाइज किए हैं, उसे फॉर्मेशन अच्छे से करना सीखा है, प्रैक्टिस करी है. अभी आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? A से लेके L तक के फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. अभी हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज से रिलेटेड करी थी. अभी आज हम फिर से A से लेकर L तक का पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे. चलिए स्टार्ट करिए. Up, down, cut, make A. Kids, you all know very well that you have to touch the upper and bottom line both carefully. आप इसका ध्यान अच्छी तरीके से रखिएगा कि अपर लाइन और बॉटम लाइन दोनों भी टच हो रहे हैं. Now one man, two big fat stomach make B, then C. Round stop C. One man, big fat stomach make D. Now one man wearing hat, coat and shoe make E. A, B, C, D, E. Kids, वैसे तो आपको अपनी
नोटबुक में 1 लाइन में 5 लेटर्स ही लिखने होते हैं। मीन्स आपको 1 लाइन में 5 लेटर्स इस तरह से, जैसे मैम ने भी लिखा है, इस तरह से कंप्लीट करने होते हैं। बट आपके पास ब्लॉक्स कम पड़ जाते हैं, इसलिए आपको मैम नेक्स्ट लाइन में लिखा देती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर लिखना है और आपके पास प्रॉपर ब्लॉक है सफिशिएंट, तो आपको क्या करना है, ए से लेकर ई तक यानी 5 लेटर्स एक लाइन में लिखना कंपल्सरी है। E then F. One man wearing hat and coat but no shoe, naughty boy. F means इसके पास शूज नहीं है, इसने शू नहीं पहने जैसे ई ने पहने, तो ये क्या है F. One man wearing hat and coat, no shoe, naughty boy. F. Then G. बच्चों जी का फॉर्मेशन आप सभी लोग बहुत गलत करते हैं। जी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपकी बॉटम लाइन जो होती है आपको पूरा प्रॉपर सी जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाएंगे, यहाँ तक टच कराएंगे। एंड देन ये जो होल्डिंग स्टिक हमने बताया था आपको, वो यहाँ से ड्रॉ करेंगे। मीन्स उसके बिल्कुल हाफ पोर्शन से लेंगे और थोड़ा सा बाहर जाएगा वो बॉटम लाइन से। मीन्स ये वाला लेटर जो है वो बॉटम लाइन से बाहर थोड़ा सा जाएगा और इस तरह से जी का फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे आप। तो चलिए जी बनाते हैं। मेक सी होल्डिंग स्टिक मेक जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम ने इसे बॉटम लाइन से थोड़ा सा बाहर ड्रॉ किया है, तो आप भी इसे बॉटम लाइन से थोड़ा सा बाहर ड्रॉ करेंगे। जी 1 man 2 man hello hello make H. Now I 1 man wearing big hat and big shoe make I. I says ice cream. Now J 1 man and turn 1 hat. J says jug. Now K. बच्चों के की प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा कि आपको अच्छे से बनाना है, ड्रॉ करना है। ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए क्योंकि ये आपको मिड लाइन से शुरू करना है, उसका एक हैंड अप और एक हैंड डाउन करना है। 1 man hand up and hand down make K. Last one L. 1 man standing and 1 sleeping line. ये आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या करना होता है, आपको 1 स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि बच्चों आपको हम पहले बता चुके हैं कि ये आपकी स्लीपिंग लाइन होती है और ये स्टैंडिंग लाइन होती है, तो आपको एक स्लीपिंग लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है और ये बन गया बच्चों एल। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K एंड एल। बच्चों अगर आपको किसी भी फॉर्मेशन में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, सारे फॉर्मेशन आपके सामने हैं। इसको अच्छे से देखकर प्रैक्टिस करिए। नाउ आई हैव डन माय वर्क, नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस इट वेल। Okay kids, now this is the time for Hindi recitation. So kids, today we are going to recite Hindi rhyme Suraj Dada. Okay kids, now stand up on your place wherever you are and put your hand on your waist and let's start this rhyme. Suraj Dada. Kids, you have to repeat after me and you all know कि सूरज दादा कैसे होते हैं, सर्कल सर्कल गोल गोल होते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइम। सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है। सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है। गाल तुम्हारे लाल लाल हैं, गाल तुम्हारे लाल लाल हैं, लगता खाया चाटा है, लगता खाया चाटा है। सूरज दादा लगता है तुम रोए हो, आंखें तुम्हारी सूज गई हैं, नहीं रात भर सोए हो। Yes, let's repeat one more time. सूरज दादा क्या मम्मी ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल लाल हैं, लगता खाया चाटा है। सूरज दादा लगता है तुम रोए हो, आंखें तुम्हारी सूज गई हैं, नहीं रात भर सोए हो। So kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Now practice it well. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn हिंदी स्वर आ से आहा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आ से लेकर आहा तक स्वर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is this kids? ये क्या लिखा है, छोटा अ, छोटे अ से अनार, छोटे अ से
अनार, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। किड्स, बच्चों, आपको अक्षर को अच्छे से पहचानना होगा। हम आपको नेक्स्ट टाइम चित्र बनाकर यहाँ पर बताएंगे और आपको उस चित्र को देखकर इसका पहला अक्षर बताना होगा कि ये कौन सा चित्र बना हुआ है और ये किस अक्षर से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ये क्या है बच्चों? ए से एड़ी, ए से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। अब ओ, ये क्या लिखा है बच्चों? ओ से ओखली, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। नेक्स्ट किड्स, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। औ से औरत। इसमें देखिए बच्चों, एक ही मात्रा लगी है, इसमें कितनी मात्रा है? 2। तो ये क्या है? बड़ा औ, बड़े औ से औरत। अंग से अंगूर और आहा अक्षर खाली, लेट्स राइट वन मोर टाइम किड्स। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आह अक्षर खाली। किड्स, लर्न इट मेनी टाइम्स। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is Hindi written. Kids, check out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 27 September 2020 and day is Sunday. Kids, हमने भी लास्ट क्लास में क्या किया था? मीन्स yesterday हमने क्या वर्क किया था? ओ से ओखली का फॉर्मेशन किया था। उसमें हमने आपको फॉर्मेशन बताया था कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं, कौन सी मिस्टेक आपको अपनी सुधारनी है। अब आज हमें क्या करना है बच्चों? अ से लेके ओ तक का फॉर्मेशन करना है। मीन्स अब तक हम जितना भी पढ़ चुके थे वो सारा अ से लेके ओ तक का फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम फिर से रिवाइज करते हैं ऐसे लेके ओ तक, फिर हम कल नेक्स्ट लेटर इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। तो अभी हम जा रहे हैं अ से ओ तक का लेटर रिवाइज करने। चलिए आप भी साथ में रिवाइज करिए। पहले हम आपको ओरल यहाँ पे लिखकर बताते हैं, फिर इसे हम बॉक्स में लिखेंगे। मीन ब्लॉक वाली नोटबुक में स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू। ये सारे फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं ताकि अब आपको अगर कोई भी फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो ब्लॉक वाली नोटबुक है, मीन्स ब्लॉक वाला बोर्ड हमने यहाँ पे सेट कर रखा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेशन के लिए प्लेन पे लिख के बता रहे हैं ताकि आप अभी भी अपना फॉर्मेशन सुधार लें। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे। तो छोटे आ से नार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ही, छोटे ऊ से उल्लू। इसके बाद बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि। बच्चों हमें पढ़ना है लेकिन लिखना नहीं है अभी, तो हम ए से एड़ी और इसके बाद लिखेंगे ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक में हमने आपको बताया है कि उसके हैंड अप जो किया है उसी के ऊपर हम मात्रा ड्रॉ करेंगे। फिर अभी हमने नया लेटर कौन सा सीखा था? ओ से ओखली। ओ से ओखली में आपको बता चुके हैं कि बड़े आ से आम बनाने के बाद
जो टू मैन है बच्चों, ये जो टू मैन है यानी जो सेकंड लाइन है इसके ऊपर ही मात्रा ड्रॉ करेंगे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आपका इस फॉर्मेशन अगर आपने रॉन्ग फॉर्मेशन किया तो आपका वो लेटर गलत करा जाएगा, मीन्स वो गलत हो जाएगा। तो आप इसे सही लिखिए, ए से एडी, ऐसे एनफ, ओ से ओपली में आप ध्यान रखिए खास तरीके से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आ से लेके ओ तक का फॉर्मेशन ब्लॉक में। कर्ली वर्ली 3 एंड अप, वन मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट, छोटे आ से अनार, अभी बड़े आ से आम लिखेंगे। कर्ली वर्ली 3 एंड अप, वन मैन, टू मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट। ये क्या बन गया बच्चों? बड़े आ से आम। बड़े आ से आम में हम आपको बता चुके हैं कि टू मैन से नहीं, हम सिर्फ वन मैन से हेलो हेलो कराते हैं। अब छोटी सी इमली, वन स्मॉल मैन मेक सीड, टर्न एंड टेल, वन हैट, छोटी से इमली। बड़ी सी, वन स्मॉल मैन मेक सीड, टर्न एंड टेल एंड वन हैट एंड वन क्राउन। बना के हमने क्या बना दिया बच्चों? बड़ी से ईख। अभी छोटे से उल्लू आप सभी को ड्रॉ करना आता है। कर्ली वर्ली 3 एंड अप एंड वन हैट, छोटे उसे उल्लू। कर्ली वर्ली 3 एंड अप, वन टेल एंड वन हैट, बड़े उसे ऊन। अभी बच्चों हम आपको बता चुके हैं री से ऋषि ये है, बट री से ऋषि हम क्या करेंगे? ड्रॉ नहीं करेंगे। या आप सिर्फ अभी लेटर को रिकॉग्नाइज करिए, सिर्फ पहचानिए। री से ऋषि हम सबसे लास्ट में ड्रॉ करेंगे। बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, इसके बाद क्या लिखना है? ए से एडी, राउंड टेल, वन हैंड अप एंड वन हैंड, ए से एडी। नेक्स्ट है राउंड टेल, वन हैंड अप, वन हैंड एंड वन लॉलीपॉप। तो आपने देखा हमने लॉलीपॉप कहाँ ड्रॉ किया बच्चों? उसका जो हैंड अप है उस पे लॉलीपॉप ड्रॉ किया है, ऐसे है ना। देन कर्ली वर्ली 3 एंड अप, वन मैन, टू मैन, हेलो हेलो, मेक अ हैट एंड वन लॉलीपॉप। तो ये लॉलीपॉप हमने कहाँ ड्रॉ किया बच्चों? टू मैन पर। वन मैन पर कुछ नहीं करेंगे, वन टू मैन के बीच में कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ टू मैन को वन लॉलीपॉप दे देंगे, मीन्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों उसे ओपली तक का फॉर्मेशन हमने कर लिया है। री से ऋषि आपको नहीं लिखना है, ऐसे एनफ और ओ से ओपली में मात्राओं का खास ध्यान देना है। तो इस तरह से आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू। Hey kids, welcome to next class and that is maths written. Kids, take out your maths notebook and open the page where I have done the setting of 27th September 2020 and day is Sunday. Kids, in our last class, we had learned to draw the formation of 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13. हमने मीन्स रिवाइज किया था। अभी आज हमें क्या करना है? 1 to 12 तक पूरी काउंटिंग खुद से करनी है। मैम ने आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिख कर दिया है, सिर्फ अंडर टीओ आपको वर्क करना है। तो टीओ आपको आपकी नोटबुक में लिखा मिलेगा, बाकी सारा वर्क आपको खुद से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल कि वंस के नीचे पहले हमें जितनी भी वन डिजिट वाले नंबर है वो सारा वंस के नीचे लिखना है, मीन ओ के नीचे लिखना है। तो स्टार्ट करिए। 1 2 3, one man hand out for policeman, 4, then 5, 6, sleeping, slanting, 7, make C, turn and join, 8, one man make C, lollipop, 9। तो इस तरह से हमने 9 तक का कर लिया बच्चों। यहाँ तक 1 डिजिट थी तो हमने 9 तक के फॉर्मेशन को जितना भी काउंटिंग थी वो हमने वंस के नीचे लिख लिया। अब हमारे पास 2 डिजिट है तो 8 डिजिट टेंस के नीचे और 8 डिजिट वंस के नीचे लिखेंगे। 1 0 10, 1 0 10, देन 1 1 11, 1 1 11, देन 1 2 12, 1 2 12। तो इस तरह से बच्चों हमने ये फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। आपको 1 से लेकर 12 तक की फॉर्मेशन बिल्कुल सेम ऐसे करना है जैसे मैम ने किया है। नाउ आई हैव डन माय वर्क, नाउ इट्स योर टर्न, प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू। Hey kids, let's move to maths oral class. Today we will learn counting 1 to 20. So let's start kids.
Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10. Kids, you have to repeat after me. So let's start one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. Kids, let's repeat one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. Hey kids, welcome to next class and that is GK Oral. Kids, as you all know that GK is an oral subject. So kids, today we are going to learn the objects or things you see in the sky. आज हमें वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग लर्न करनी है जो कि हम आसमान में देखते हैं. तो बच्चों, हम आसमान में क्या क्या देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो हम आज स्काई में देखते हैं. स्काई में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सन. क्या देखते हैं, आफ्टरनून में हमारा सन दिखता है ना हमें. जब मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले सनराइज होता है, तो सन दिखता है हमें, सूरज ज्यादा दिखते हैं. एंड आफ्टर दैट इन द नाइट हम क्या देखते हैं, एट नाइट हमें देखने को मिलता है चंद्रमा, चंदा मामा मीन्स मून. हमें क्या देखने को मिलता है, नाइट में हम देखते हैं मून और दिन में क्या देखते हैं बच्चों, सन. तो एक तो हो गया सन, दूसरा हो गया मून एंड आफ्टर दैट ये क्या है बच्चों, स्टार्स. नाइट में हमें क्या देखने को मिलता है, स्टार्स बहुत सारे होते हैं ना आसमान में, तो वो भी कहाँ होते हैं, स्काई में ही होते हैं. तो स्काई में हमें 3 थिंग्स पता चली, सन, मून, स्टार्स. और बच्चों, चिड़िया जो होती है, बहुत चिड़िया है या कोई भी बर्ड्स हैं, कोई भी पक्षी हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं. तो हमने आसमान में ही तो उड़ते हुए देखते हैं ना. तो बच्चों, ये बर्ड्स भी क्या हुई, आसमान में उड़ने वाली, मीन्स स्काई में ही हम उन्हें देखते हैं. तो थिंग्स यू सी इन द स्काई में बर्ड्स भी आ गई. So kids, these 4 things you see in the sky: sun, moon, stars and birds. ये क्या है बच्चों, क्लाउड. जब भी कभी रेन होने वाली होती है या नॉर्मली ऐसे थोड़ा भी वेदर चेंज होता है तो क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाउड्स आप देखते हो, कभी व्हाइट देखते हैं, कभी ब्लैक देखते हैं. तो क्लाउड्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के हमें दिखते हैं. तो क्लाउड्स भी कहाँ होते हैं, स्काई में ही तो होते हैं ना. आसमान में हम बादल देखते हैं तो ये बादल है, तो ये क्लाउड्स भी हम किसमें काउंट करेंगे, थिंग्स यू सी इन द स्काई. अभी लास्ट है एरोप्लेन. बच्चों, एरोप्लेन जब भी आपने उड़ते हुए देखा है, एरोप्लेन कहाँ देखा है, स्काई में तो देखते हैं ना हम, या फिर वो लैंड करता है तो जमीन पर आता है. लेकिन उड़ता कहाँ है बच्चों, हम उसे मोस्टली कहाँ देखते हैं, स्काई. तो ये भी क्या हो गया, थिंग्स यू सी इन द स्काई, एरोप्लेन. सो किड्स, लेट अस लर्न थिंग्स यू सी इन द स्काई: सन, मून, स्टार्स, बर्ड्स, clouds and aeroplane. So kids, you can learn these objects with the help of your finger. Let's start. Sun, moon, stars, birds, aeroplane और cloud. आप कोई भी 5 things लर्न कर सकते हैं, उसमें aeroplane भी ले सकते हैं, cloud भी ले सकते हैं. तो आपको जो इजी लगे आप उसे लर्न करिए. Let's revise again. Sun, moon, stars, birds, clouds and aeroplane. So kids, you have to learn these things, learn it well. Thank you.